Hello students, I am M.K. Roy and today I am here with the most awaited topic that is called quantization of charges. Guys, what this quantization means? Quantization means discrete or grainy in nature, or we may say here countable, that is जिसकी गिनती की जा सके. डिस्क्रीट अलग अलग वैल्यू जिसे अलग अलग रूप में देखा जा सके. ग्रेनी मीन्स अनाज के दाने की तरह, अनाज के साबुत दाने की तरह, होल दाने की तरह, अनाज के दाने की तरह. Okay, so what has been taken that charges are quantized, that is these are discrete, these can be counted and these are grainy in nature, अनाज के दाने की तरह है. Now try to understand here क्यों ऐसा लिया गया होगा. What is the basis on which these all things can be taken for the charges as the granted one. Let us take an example. We know the electrons and protons are having the charges. So we talk about electrons and protons. Suppose one body loses 100 electrons and it goes to another body. So it takes 100 electrons, right? Now if we try to say or find out what is the amount of charge on this body, इस बॉडी पर कितना चार्ज गया होगा. चार्ज मीन्स संख्या नहीं, अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड कितना जमा हुआ होगा. देन व्हाट टू से 100 electrons has been transferred from here to here, then available amount of charge over this body can be taken as 100 times charge on one electron, that is 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. If we write here, this was the number that is called integer, this is number 100 electrons, this is number integer, whole number, and this is as E. I have given the notation small e. Then what is this n into E? This is the number of charge and this is charge on each number, that is one electron, right? And this total quantity is suppose written as capital Q. So what is capital Q? This is amount of charge, this is integer and this is charge on each electron. Okay, each electron. If you take the proton, पहले से हम जानते हैं कि प्रोटॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसलिए हम अभी इलेक्ट्रॉन पर अपने आप को रखते हैं. ठीक, अगर प्रोटॉन लेना हो तो प्रोटॉन भी हो जाएगा. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स चार्ज ऑन प्रोटॉन. अंतर सिर्फ क्या है, साइन का अंतर है. इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लिख सकते हैं और प्रोटॉन के लिए प्लस लिखना होगा. ओके, नाउ ट्राई टू थिंक व्हाई दिस कंसेप्ट हैज बीन टेकन, दैट electrons are quantized, sorry, charge is quantized, right? So what basis this Q equals n times E is valid? Let us try to find out. Students, we know that electrons are the smallest particle. It has been assumed that electrons एक बेसिक पार्टिकल है, प्रोटॉन्स एक बेसिक पार्टिकल है और न्यूट्रॉन भी एक बेसिक पार्टिकल है जिसे फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है. It cannot be further subdivided into smaller particles, smaller parts, right? अगर इसको एक बेसिस मान लिया जाए, then we cannot take here that Q equals n by 2e, n upon 2e, n upon 3e, and so on. These are invalid. Why? Because electrons का टुकड़ा तो हो नहीं सकता है. If electrons are not divided, subdivided into smaller particles, these are themselves the smallest particle, then on this basis, this is right. This formula is right. This concept is right. That electrons cannot be divided into smaller particles. Okay,
So we cannot take here n by 2e, n by 3e and so on. Fraction में electrons cannot be available, right? But एक another concept है हमारे पास, एक दूसरा concept है जिसे यहां लिया नहीं गया है, अगर उसे ले लिया जाए तो these are also right. उस concept कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को भी अलग अलग टुकड़े में तोड़ा जा सकता है. these are again divisible. कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को भी कई पार्टिकल मिलकर बनाते हैं, प्रोटॉन को भी कई पार्टिकल मिलकर बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन को भी कई पार्टिकल्स मिलकर बना सकते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि ऑन दैट बेसिस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट द बेसिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, राइट? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट? दैट कॉन्सेप्ट इज क्वार्क कॉन्सेप्ट. QUARK, quark concept. And on this quark concept or basis, what has been taken? That protons, neutrons and electrons are again not individual, but these are the combination of some other particles and these particles are known as quarks, right? जिसे लिया गया, कई तरह का क्वार्क को लिया गया, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क and so on. Up quark can be denoted as U and U is having the charge plus 2e upon 3. Down quark has been denoted as D and it is having value minus e by 3. Okay, if we take this concept, quark concept, then this will be invalid. So let us try to find out, analyze कर रहे हैं हम इसे लिया नहीं गया बुक में, इसे आगे लेंगे भी नहीं हम, ठीक है, बट एक अपना नॉलेज अपडेट करने के लिए. इफ यू टेक प्रोटॉन, सपोज ये बनेगा कैसे प्रोटॉन? अगर इस कॉन्सेप्ट को लिया जाए और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, ये तीनों पार्टिकल को देखते हैं बनता कैसे है. इफ यू ट्राई टू टेक द कॉम्बिनेशन, सपोज दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को मिला दिया जाए, व्हाट कैन वी हैव? लेट अस सी. वी कैन हैव 2e by 3 plus 2e upon 3 and minus e upon 3. u plus 2e by 3 plus 2e by 3 down minus e by 3. अगर इन तीन पार्टिकल को मिला दिया जाए तो what shall be the answer? Answer will be 2 to 4, 4e upon 3 and minus e by 3. What is the answer? This is 3e by 3, 3 cancel, that is plus e. That is proton has been obtained, isn't it? प्रोटॉन पता हो गया. अगर इस बेसिस को क्वार्क के प्रिंसिपल को लिया जाए तो प्रोटॉन भी तीन पार्टिकल का बना हुआ है. कौन कौन? दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क. इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन को चेंज कर दो एंड यू शैल गेट न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. सपोज हमने कर दिया UDD, एक अप क्वार्क लिया तो डाउन क्वार्क ले लिया. व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? 2e upon 3 minus e upon 3 minus e upon 3. What is the answer? 2 and 2 cancel 0 and this is what? Neutron, no charge. Similarly you can have electron and so on. इसका मतलब यह है कि ऑब्वियसली इस कॉन्सेप्ट को यहां नहीं लिया गया है डिस्कवरी में, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि चार्ज, जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज किसी बॉडी पर होता है वो सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, राइट? सो आवर कंसर्न इज here only, without taking this concept, that charge, total amount of charge on a body is an integral multiple of the basic charge or the fundamental charge, that is charge on each electron or proton. Now if you write here Q equals plus minus Ne, no problem, because when we take into account the electron is negative charge, so we shall place minus Ne. If we take proton, then we shall take the positive charge of proton, so plus Ne. यानी ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, माइनस Ne भी हो सकता है और प्लस Ne भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन, राइट? सो Q इक्वल्स माइनस Ne फॉर इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल्स प्लस Ne फॉर प्रोटॉन, राइट? नाउ दिस क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, what I have written here, Q equals plus minus Ne, this was first time discovered by Michael Faraday during his laws of electrolysis. And finally in 1912 Millikan, during his oil drop experiment to find out the charge to mass ratio,
experimentally demonstrated this one very well, right? Now friends, try to find out where this quantization principle is valid. अभी तक तो आ गया कि ये Q जो होगा, चार्ज जो होगा, टोटल अमाउंट, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा. दैट कैन नॉट बी अवेलेबल इन फ्रैक्शनल फॉर्म बिकॉज इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है. और कौन सा बेसिस पर? तो क्वार्क के बेसिस पर नहीं. अगर क्वार्क कॉन्सेप्ट लाया जाए तो दिस इज अगेन डिविजिबल. सो दिस Q इक्वल्स एनी इज नॉट फंडामेंटल रूल, नॉट वैलिड, बट we can use the formula Q equals n by 2e n by 3 and so on, right? लेकिन हमने अभी ले लिया, taken granted that Q equals plus minus ne is valid because quark principle has not been taken into account here. Now try to check out this Q equals plus minus ne वैलिड कहां पर है, किस बेसिस पर ये वैलिड होता है, कहां पर ये इनवैलिड हो जाता है. ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं. सपोज आपके पास, मैंने बोला एक मुट्ठी गेहूं के दाने को ले लो. एक मुट्ठी आपने ले लिया, लंप ऑफ व्हीट ग्रेन आपने ले लिया, एक मुट्ठी दाना, और एक मुट्ठी दाने को कहीं टेबल पर रख दिया या कहीं रख दिया और बोला आपसे कि काउंट करो इसे. फ्रेंड्स, यू कैन काउंट. सपोज 100 दाना आपके पास आ गया, 200 दाना आपके पास आ गया, बिकॉज दीज आर इन स्मॉल अमाउंट. दाना है, सॉलिड साबुत दाना है, आपने एक एक करके काउंट कर लिया. अब मैं बोलता हूं उन दाने को पीस दो, ग्राइंड कर दो, फाइन पार्टिकल्स में ग्राइंड कर दो. फिर उसी एक मुट्ठी ही दाना था, उसको पीस दिया, आपने ग्राइंड कर दिया, फिर मैं टेबल पर रख दूं और बोलो कि काउंट करो प्रत्येक पार्टिकल्स को. दिस इज अमेजिंग. कैन यू काउंट? नो, इट इज अनकाउंटेबल नाउ. एंड आई एम ट्राइंग टू से हियर, दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर कि ये Q इक्वल्स एनी वैलिड कहाँ है और इनवैलिड कहाँ है. फ्रेंड्स, जब हमारे पास चार्जेस, अवेलेबिलिटी जो चार्जेस की होगी वो स्मॉल अमाउंट में जब होगी तो वो वैलिड है. क्यों? क्योंकि वो काउंटेबल है. लेकिन वो अगर चार्जेस एनॉर्मस अमाउंट में है, बहुत लार्ज अमाउंट में है, तो ये काउंटेबल नहीं होगा, ग्रेनी नेचर का नहीं होगा, इसलिए इनवैलिड हो सकता है. ठीक है, जैसे मैं लेना चाहता हूं 1 कूलम चार्ज, राइट? 1 कूलम चार्ज सुनने में 1 कूलम है, बट फ्रेंड्स, in 1 coulomb of charge, try to find out how many electrons are there. On the basis of this formula, you have Q equals Ne. So N equals Q upon E. And Q is how much? 1 coulomb divided by 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Coulomb will be cancelled out and we will left with 10 to the power 19 upon 1.6. Friends, when you divide this one, you will get 6.25 10 to the power 18 electrons. 18 electrons. N number of electrons 6.25 10 to the power 18 electrons, which is just uncountable. Very large number of electrons are there, जिसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार से काउंट नहीं कर सकते हैं. 10 to the power 18 का पावर है और उतना इलेक्ट्रॉन मिल के चार्ज कितना बना रहा है? 1 कूलम, राइट? एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखा जा सकता है कि 1 कूलम की ग्रेविटी क्या है, ये कितना बड़ा चीज है. सी हियर, अगर मैं बोलूं कि 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स को पर सेकेंड, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर कहीं ट्रांसफर होता है और किसी, देन फ्रेंड्स 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड 1 कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी पर जमा करता है, 1 सेकेंड में 10 को पावर 9 इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है धीरे धीरे. 1 कूलम चार्ज कब तक जमा होगा, कब हम कहेंगे कितना समय लगेगा जब 1 कूलम चार्ज बनेगा. हम 1 कूलम की ग्रेविटी को देखना चाहते हैं, उसके महत्ता को देखना चाहते हैं कि 1 कूलम तो बोलने बड़ा आसान है, 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है ये, क्या इस लेवल पर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वैलिड है, फाइंड करना चाहते हैं. 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड सप्लाई होकर अगर 1 कूलम चार्ज बनाना है तो समय कितना लगेगा? 1 कूलम चार्ज 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स 1.6 10 to the power minus 19, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐसा 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो होगा वो हो जाएगा 1.6 10 to the power minus 19 and plus 9 minus 10, राइट? ये कितना हुआ? ये कूलम हुआ.
यानी 1 सेकेंड में हुआ ये, उस बॉडी पर जमा हुआ 1 सेकेंड में कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। गाइस, अगर 1 सेकेंड में इतना चार्ज जमा होता है, इतना कूलम का, तो आप कैलकुलेट करोगे कि 1 कूलम जमा होने में ऑलमोस्ट 198 ईयर्स लग जाएंगे, जिसको मैं बोल सकता हूं राउंड फिगर में 200 ईयर्स लग जाएंगे। मैथमेटिक्स कैलकुलेट करेंगे आप, राइट। 1 कूलम चार्ज को जमा करने में किसी बॉडी पर कब, जब मैंने लिया है कि 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जा रहा है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, तब 200 साल लगेगा लगभग सिर्फ 1 कूलम चार्ज जमा करने में। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि 1 कूलम बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज है, एंड इट इज सेल्डम प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी एट इलेक्ट्रोस्टैटिक लेवल। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेवल पर यह चार्ज 1 कूलम विशाल चार्ज अवेलेबल नहीं होता है। इवन वी ट्राई स्मॉलर यूनिट्स, that is called microcoulomb, and if you take microcoulomb, that is 10 to the power -6 coulomb, again here it is not very small. This 10 to the power -6 coulomb contains almost 10 to the power 13 times the basic charge, basic amount of charge, that is charge on one electron or proton, उसका 10 to the power 13 times almost होगा जब 10 to the power -6 कूलम की बात करें। दिस इज स्मॉलर यूनिट ऑफ द चार्ज, राइट। सो ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। नाउ मैंने जो गेहूं की बात बताई कि गेहूं के दाने को एक मुट्ठी दाना है, काउंट कर सकते हैं, डिस्क्रीट है, वो अलग अलग है, अलग अलग देखा जा सकता है। सो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल इज वैलिड, लेकिन उसे जब ग्राइंड कर दिया जाए, स्मॉल पार्टिकल्स में बदल दिया जाए, देन लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर अवेलेबल विद अस एंड दीज आर अनकाउंटेबल। इसका मतलब 2 लेवल तैयार हुआ फ्रेंड्स। एक लेवल तैयार हुआ माइक्रोस्कोपिक लेवल, और एक हुआ मैक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रो मीन्स स्मॉल अमाउंट, मैक्रो मीन्स लार्ज अमाउंट। ये 1 कूलम की जब बात मैं कर रहा हूं तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात कर रहा हूं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात कर रहा हूं। और अभी हमने देखा कि जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात हो रही है तो अनकाउंटेबल बन जा रहा है चार्ज, और चार्ज की संख्या को काउंट नहीं किया जा सकता है। कैसा देखने में लगता है, वो कंटिन्यूअस देखने में लगता है। जैसे कुछ पॉइंट्स को ले लिया जाए, डॉट्स को ले लिया जाए, वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर एंड these are taken on a line, एक लाइन पर ले लिया जाए कॉपी पर, सपोज वेरी स्मॉल पॉइंट्स, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स, और इन सारे पॉइंट्स को अगर डॉट्स को थोड़ी दूर से देखा जाए तो क्या इन पॉइंट्स को काउंट कर पाएंगे आप? नहीं। ये पॉइंट्स कैसे नजर आएंगे, ये कंटिन्यूअस नजर आएंगे, कहीं ये 2 पॉइंट के बीच में गैप नहीं नजर आएगा, राइट। जब स्टार्स के क्लस्टर को देखते हैं हम, खुली आंख से जब देखते हैं तो कैसा नजर आता है, यू कैन नॉट काउंट वन बाय वन द स्टार, राइट। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को फोकस कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको क्या करता है, सेपरेट कर देता है, जिसे मैं क्या बोलता हूं फिजिक्स की भाषा में, रिजॉल्व कर दिया उसे। बट आवर आई, दिस आई इज नॉट सो मच पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, इट कैन नॉट रिजॉल्व, राइट। सो ये देख नहीं पाएगा। सो कुछ दूर से अगर देखते हैं इन सारे पॉइंट्स को तो सिंगल लाइन नजर आएगा लाइक दिस, और इसे मैं क्या कह रहा हूं, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कब, जब so many dots are there and these dots, so many dots are there, these are combined as a continuous form and this is called line. So whenever charge is available at macroscopic level then it becomes continuous. ये कंटिन्यूअस सेंस देता है, डिस्क्रीट नहीं रह जाता है, काउंटेबल नहीं रह जाता है, ग्रेनी इन नेचर नहीं रह जाता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट। तो वैलिड कहां पर है, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, व्हेन चार्जेस आर अवेलेबल इन वेरी स्मॉल लम्प्स और वेरी स्मॉल अमाउंट्स। जैसे गेहूं के बारे में बताया, दाने के बारे में मुट्ठी भर था, उसे काउंट कर लिया गया, उसी को ग्राइंड कर दिया गया, इनफाइनाइट नंबर हो गया, पेस्ट के रूप में हो गया, काउंटेबल नहीं हुआ। यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो काउंटेबल था दाने के रूप में,
क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वैलिड था। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जब उसको ग्राइंड कर दिया गया, बहुत छोटे छोटे दाने हो गए, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हो गया, वो कंटिन्यूअस हो गया। जिसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है द नोटबुक। द पेजेस ऑफ द नोटबुक इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या हम उस पेज के, उस कॉपी के पेज के प्रत्येक पार्टिकल्स को, जो उसका कॉम्बिनेशन है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, काउंट कर सकते हैं? नो। वो कैसा नजर आता है? कंटिन्यूअस नजर आता है। ये बोर्ड जो है कैसा नजर आ रहा है? एक कंटिन्यूअस नजर आ रहा है, कहीं भी दाना नहीं दिख रहा है, कहीं पार्टिकल नजर नहीं आ रहा है। हम एचडी पिक्चर की बात करते हैं, हाई डेफिनेशन पिक्चर की बात करते हैं, हम पिक्सल की बात करते हैं, हर एक जगह पर यही है क्वांटाइजेशन। जब मैं बोल रहा हूं कि एचडी है, इसका मतलब पिक्सल की संख्या बढ़ा दी गई है। हाई डेफिनेशन मीन्स पिक्सल, दाना भर दिया गया है ज्यादा, और उसे जब जूम किया जाता है पिक्चर को, तब भी वो पिक्चर फटता नहीं है। वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात हो रही है बेटे। दैट इज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वैलिड नहीं हो रहा है वो, बिकॉज इतना सारा दाना हो गया कि काउंट नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूअस लग रहा है, वो सपाट नजर आ रहा है वो। लेकिन अगर पिक्सल की संख्या कम हो जाए, लो डेफिनेशन वाला एचडी ना हो, क्वालिटी उसकी लो हो जाए, और आप अगर जूम करते हो, यू कैन सी डिफरेंट पार्ट्स, है ना, पिक्चर फट जाता है। सो ऑन दिस बेसिस वी फाइनली कंक्लूडेड दैट this is quantization principle, that is total available charge on any body is just integral multiple of the basic charge or fundamental charge, and that fundamental charge is charge associated with one electron or one proton. And again, what is the conclusion? This is valid at microscopic level only, where charges are available in very small amounts. These are not valid at macroscopic level, where charges are enormous in amount, just like 1 coulomb of charge, and this becomes the continuous form. So ये लेवल पर कैसा फॉर्म है? डिस्क्रीट फॉर्म है, और यहां पर कैसा फॉर्म है? मैक्रोस्कोपिक पर कंटिन्यूअस फॉर्म है। सो फ्रेंड्स, these were the main concepts of this quantization principle. I hope you have understood, and you have to try the NCERT example questions, and we shall see Coulomb's law in the next section, right? Thank you.